हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपका एसएस का लेसन नंबर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और बच्चों, कैसा चल रहा है आप लोगों का। हम लोगों की जो फिजिकल स्कूल चालू हुई थी उसके बाद में फिर अभी थोड़े दिन का जो हमारा जो ब्रेक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ में अच्छी तरीके से कोऑपरेट करो और जो वर्क हम लोग ऑनलाइन करवा रहे हैं वो आप लोग ध्यान से करना। ओके, तो अब हम हमारा लेसन नंबर 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। द अर्ली 19th century was a period of deliberation and experimentation in the domain of administration of the countryside. The company, now the Diwan of Bengal and the chief administrator of many other regions, was attempting to experiment with the collection of maximization of revenue. The method employed by the company officials to achieve this and their far-reaching conquests are some of the topics we will touch upon in this chapter. यहाँ पे ये चैप्टर में हम लोग जो रेवेन्यू वसूल किया जाता था, जो अभी हम लोग टैक्स बोलते हैं, वो टैक्स का बहुत ज़्यादा तभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था और एक्सपेरिमेंट्स वो लोग कर रहे थे और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो लोग सबको एक्सप्लेन कर रहे थे और रेवेन्यू टैक्स किस तरीके से वसूल करना है और तभी का क्या तरीका था, मेथड था, वो हम लोग आज ये लेसन में रीड करेंगे और समझेंगे। न्यू मेजर्स इन द कंट्री साइड हैविंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इट्स ट्रेड्स कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया for nearly 100 years, the company was aware of the fact that it was still considered an alien power by the locals and thus looked at with suspicions. कंपनी, यहाँ पे कंपनी मीन जो ब्रिटिश रूल था उसको आप लोगों को मालूम है कि कंपनी बोला जाता था, तो वो इसमें ये एक्सरसाइज में और इसमें ये बता रहे हैं कि जो वहाँ के लोकल लोग थे वो अभी भी जो कंपनी वाले जो ब्रिटिश थे उनको अपना दुश्मन और बाहर वाले समझते थे। इन द ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर द लोकल जमींदार्स और द विलेज हेडमैन had always held power and prestige over the peasants and cultivators. Peasants means किसान, जो हमारे रहते किसान और जो दूसरे मजदूर रहते हैं उनके ऊपर जमींदारों को ऐसा लगता था कि हमारा हक है। These peoples were usually responsible for administrating the territory, collection revenue and submit the same to the royal coffers. The company official had no inclination to describe this pre-existing structure as long as the company's share in revenue continued to increase and these local leaders proved no threat to the company's power. मतलब जो कंपनी वाले थे, ब्रिटिश थे, उन लोगों को ये जो लैंड रेवेन्यू या जो भी टैक्सेस पहले वसूल किए जाते थे जमींदार से, लोकल फार्मर्स, लोकल किसानों से, वो ही कंपनी वालों को पता नहीं था। पर जैसे जैसे उनको पता चला इस रेवेन्यू के बारे में, टैक्स के बारे में, तो उन लोगों ने अपना उनका जो हिस्सा था वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया था। डिस्पाइट सेक्यूरिंग द दीवानी द कंपनी वॉज नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट ब्रिंगिंग एनी सिग्निफिकेंट reforms in the agricultural practices. It was a trading firm which was interested in purchasing fine silk and cotton from India and selling them in European markets at higher profits. Earlier, the company had to import gold and silver from Britain to purchase these materials in India. But within a few decades, the revenue generated from the countryside was enough to finance with such purchases within India. Since the company now became the real master of Bengal, its greed for more profit led to the exploitation of Indian artisans. They were forced to sell their products to the company at lower prices. This resulted in the migration of artisans from villages to cities. The tax imposed on peasants was so high that they were unable to buy it. Such situation coincided with a terrible famine in Bengal in 1770, which killed nearly 1 crore people. When the economy was in ruins, how could the company gain any benefits? This compelled the company to introduce certain new measures in order to improve
the agriculture. In the wake of such circumstances, the company introduced three major revenue settlement systems. First was the permanent settlement system, Mahalwari system and royalty system. तो जब कंपनी जब यहाँ नई नई आई थी, उनको कुछ पता नहीं था, और जो हमारे इंडिया का जो ट्रेजर माना जाता था, जैसे सिल्क है, सिल्क और कॉटन का जो था, तो उन लोगों को वो खरीदने के लिए वो लोग फॉरेन से वहाँ से उन लोग गोल्ड और सिल्वर मंगा के और ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया वालों से खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया पे जब उनका राज्य जमा दिया और इंडिया को उन्होंने कॉन्कर जैसे कर लिया, बंगाल साइड को, तो उन्होंने जो वो टैक्स हमारे से वसूल करते थे, हमारे जो खेती किसान और दूसरे मजदूरों के पास से जो वो टैक्स जमा करते थे, वो लोग वही टैक्स के पैसों से वो लोग सिल्क और कॉटन यहाँ से हमारे इंडियन जो फार्मर्स किसान थे उनसे खरीदने लगे थे। और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने इतना सारा अपने पैर जमा लिए थे वो एरिया में बंगाल में, कि उनको फिर बाद में जो हमारे किसान थे वो इतने बेचारे मजबूर हो गए थे कि बहुत से किसानों को अपनी ज़मीन छोड़ के और सिटीज़ में जाना पड़ा था उनके काम के लिए। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, यहाँ पे उन लोगों ने फिर बाद में 3 सेटलमेंट सिस्टम्स अप्लाई किए थे, परमानेंट वाले, महालवारी वाले और रॉयल्टी वाले। तो इसमें फर्स्ट वाला जो हमारा है द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस who was appointed the Governor General of India in 1786 was instrumental in formulating the system of permanent settlement. Some of its important features are as follows. यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके कुछ लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने बनाए थे, तो उसके हम लोग आगे इसके डीप में उसका मीनिंग क्या था और क्या था वो ये हम लोग देखेंगे। द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1973 इन बंगाल प्रोविंस। ये बंगाल प्रोविंस में 1793 में ये अप्लाई किया था। दोज हु हैड कंसिडरेबल पावर इन द कंट्री साइड such as राजाज एंड तालुकेदार्स वेर रिकग्नाइज्ड एज द जमींदार। मतलब वहाँ के जो राजा और तालुकेदार जो थे उन लोगों को एज ए जमींदार उन लोगों ने अपॉइंट किया। These zamindars were assigned and responsibility of collecting revenue from the peasants to pay a fixed amount of revenue to the company। मतलब उन लोगों ने जो तहसीलदार वो थे उनको जमींदार बना के और उन लोगों को ये काम सौंपा था कि आप लोगों को किसान के पास से रेवेन्यू टैक्स जो है वो आपको वसूल करना है और वो ब्रिटिश कंपनी जो है उनको आपको देना है। As the name suggested, the amount of the tax was fixed for a long period of time. It was fixed at a very high rate। मतलब वो ज़मींदारों ने उन्होंने क्या किया कि नाम फिक्स करके सबके नाम के अकॉर्डिंग उन लोगों को जो टैक्स उनको भरना था वो उन लोगों ने फिक्स कर दिया। और वो टैक्स ऐसा कुछ नहीं था कि चलो 1 साल के लिए है या 2 साल के लिए, बहुत लंबे टाइम के लिए वो टैक्स उन लोगों को पे करना पड़ता था। The official assumed that such a system could ensure not only a regular flow of income to the company but also encourage the zamindar to invest in the improvement of land in layer of additional profits। मतलब उन लोगों ने जो जमींदार है उन लोगों को ऐसा समझाया था कि आप जितना ज़्यादा रेवेन्यू या टैक्स आप लोग जितना ज़्यादा वसूल करोगे तो आप लोगों को आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आप लोगों को उससे बेनिफिट रहेगा। Termites of the permanent settlement system. Soon after introducing the system, the company began to realize its defects. Foremost, the revenue was fixed so high that many zamindars began to default the payment. Also, some zamindars did not invest in the improvement of land, which resulted in a negligible increase in production. The terms of the agreement clearly stated that if a zamindar failed to pay the tax, his zamindari would be auctioned। मतलब उन लोगों ने जो ज़मींदार थे उन लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दिया। उन लोगों ने कुछ भी इम्प्रूवमेंट ज़मीन में और उसमें वो करने नहीं लगे और उनके अकॉर्डिंग उन लोगों को जैसा करना था तो वैसे करने लगे। तो कंपनी वालों ने एक उनके ऊपर भी रूल लागू कर दिया कि जो ज़मींदार का सबसे कम कलेक्शन रहेगा और जो सबसे कम टैक्स अगर जमा करके देगा तो उससे उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। मतलब उसको उसके पोस्ट से
हटा दिया जाएगा। और ऑक्शन, ऑक्शन मीन्स बोली लगाते जो हम लोग कोई भी चीज़ की, तो वैसे उसकी जमींदारी की बोली लगेगी और जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो उसको वो जमींदारी उसको मिल जाएगी। However, the situation dramatically changed in the beginning of the 19th century. Prices of the crops in the market rose and cultivation gradually expanded. Zamindars were the biggest beneficiaries due to this. They witnessed an exploitative rise in their income. On the other hand, the company suffered losses as they could not reap the benefit of increased production due to the permanently settled revenue. इसमें फिर बाद में ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि जो किसान थे उनकी जो क्रॉप था, जो उनका जो भी वो लोग उगाते थे उसके प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए और इसमें जमींदार को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया था, क्योंकि उन लोगों को उनको ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलने लगा था और कंपनी लॉस में जा रही थी। कंपनी लॉस में इसके लिए जा रही थी क्योंकि जो उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया था, जो जमींदार थे उनको उसके अकॉर्डिंग ही पैसे देते थे और जो ऊपर की सारी इनकम थी, जो एक्स्ट्रा इनकम थी क्रॉप्स की, वो जमींदारों को मिलती थी। The system was most appropriate of the peasant and the artisan in the countryside. A person who cultivated the land found the tax so high that he had to take a loan for money lenders. If he failed to pay the same, he was evicted from the land and he had tiled for generations. मतलब फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो पीजेंट्स जो किसान थे और जो मजदूर थे, तो उन लोगों को उनकी ज़मीन में उनको जो भी उनको उगाना था या उपज करनी थी उसके लिए उनके पास पैसे कम पड़ते थे, तो उनको पैसे ब्याज से मनी लेंडर से मीन्स ब्याजखोर जो है उनसे पैसे लेना पड़ते थे और अगर वो ब्याज या पैसे भर नहीं पाते थे तो उनके पास से उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। द महलवारी सिस्टम, अब ये जो सेकंड पॉइंट है महलवारी सिस्टम, वो किस तरीके से हम लोग देखेंगे। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट system, the company official realized that need of a better revenue maximization mechanism, one is in which the company's income grows with an increase in production. The question was which method could yield the best result. In 1822, a company official named Holt McZaney invented a new system of revenue collection called मालवारी। इसमें इन लोग जो ब्रिटिश कंपनी थी उन लोगों ने बहुत सोचा कि अभी इसमें तो हमको नुकसान हो रहा है, तो हमारे को कुछ और ऐसा तरीका टैक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए निकालना चाहिए जिससे हमारा बेनिफिट हो सके। और उन लोगों ने इसके लिए 1822 में एक कंपनी ऑफिशियल, एक ब्रिटिश ऑफिशियल हॉल्ट मैक्सिनी है, उन्होंने एक और सिस्टम इन्वेंट की जिसका नाम था मालवारी सिस्टम। In the northwestern province of Bengal Presidency, most of this area now in present day Uttar Pradesh and Bihar, under this a village was collectively considered a mahal. Each piece of cultivatable land or plot in a mahal was thoroughly inspected and measured. Revenue from each plot was established and total revenue that each mahal had to pay was calculated. Unlike the permanent settlement, the revenue under the Mahalwari system was revised from time to time. The charge of collection revenue was assigned to the village headman. अब इन लोगों ने पहले के जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, अभी उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया बोला जाता है, वहाँ उन लोगों ने ऐसा कंफर्म नक्की किया कि हम लोग जो ज़मीन है उसको मापेंगे और उसको मापने के बाद में उसके ऊपर उसका जो टैक्स है वो हम लोग अप्लाई करेंगे और उसमें रिपीटेडली हम लोग मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते रहेंगे कि भाई ज़मीन में कितनी क्या उगा है, उन लोगों ने उगाया है, क्या खेती करी है और उसका टैक्स रेगुलरली आ रहा है नहीं आ रहा है। और ये उन लोगों ने इसके लिए जो विलेज के जो हेड्स थे, मतलब जो गांव के मुखिया थे, उन लोगों को इसके लिए काम के लिए उन्होंने अपॉइंट किया। और अब तीसरा जो था पॉइंट वो है रॉयल्टी सिस्टम। एज सून एज द कंपनी एक्वायर्ड territorial control over part of South India, it realized that village structure in the south was different from the north. There was no zamindar in the village, hence the revenue could be directly collected from the cultivator or royat. Their land was carefully assessed and measured and revenue was decided accordingly. The system was initially tested as a small scale,
by Captain Alexander Reed and later developed and applied all over the South India by Thomas Munro. Hence, apart from Roitwari system, it also known as the Munro system. उन लोगों ने फिर बाद में ऐसा देखा कि जो साउथ इंडिया है उसके जो एरियाज़ हैं वो बंगाल और बिहार उत्तर प्रदेश के एरिया से अलग थे और वहाँ पे कोई ज़मींदार नहीं थे, वहाँ पे जो किसान खुद थे वही अपना सारा जो भी उनका था वहीवट वो लोग करते थे। तो उन लोगों ने पर्सनली खुद ही कलेक्शन का सोचा और उन्होंने ज़मीन को उसके एकदम एसेस करके मतलब अच्छी तरीके से माप के, और जैसे उत्तर प्रदेश बिहार में किया था वैसे ही वहाँ भी किया उन लोगों ने कि ज़मीन के एरिया के हिसाब से उन लोगों को टैक्स और रेवेन्यू पे करना पड़ता था। Discontent in the countryside. Within a few decades of imposing new measures, dissatisfaction among peasants and artisans began to rise in the countryside. The company fixed higher revenue without introducing new and advanced agriculture practice. As a result, many people started deserting the villages. Frustration against the company and its officials started creeping. मतलब उन लोगों ने पैसे तो ज़्यादा लेने चालू कर दिए थे, लेकिन कोई भी नया मेथड या कोई भी नई ऐसी सिस्टम उन लोगों ने खेती में और उसमें किसान लोगों के लिए वो लोग नहीं लाए थे, और जो किसानों को पैसे ज़्यादा भरना पड़ते थे उसकी वजह से वो लोग एकदम मतलब बहुत इरिटेट हो गए थे, और उन लोगों ने धीरे धीरे करके कंपनी के अगेंस्ट उन लोगों ने अपना जो मतलब कंपनी के अगेंस्ट उन लोगों ने बोलना चालू कर दिया था, और उन लोग अगेंस्ट उनके जा रहे थे और कि मतलब हम लोगों को जो हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं उसका हम लोगों को पूरा बेनिफिट नहीं मिल रहा है और कंपनी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो लेसन ये हमारा जो है यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो तीनों पॉइंट्स है वो समझा दिए हैं, और ये लेसन अभी यहीं पूरा करेंगे और नेक्स्ट सेशन में आगे का लेसन में लूँगी और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझाऊँगी। और अगर आपको लेसन समझने में या कोई भी कुछ भी आपको क्वेरीज है तो आप मेरे को फ़ोन करके, मेरा नंबर आपके पास है, उससे आप पूछ सकते हो, और आपको अगर कुछ और पूछना है तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, हाँ जो लेसन है वो कंप्लीट करेंगे और उसकी एक्सरसाइजेस करवाएंगे। ओके बाय, सी यू अगेन।